عجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین الحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر قسمت اللہ الکبریٰ ان کا یہ احسان کہ یہ عظیم الشان سالانہ مجالس عطا جو اس مرتبہ پھر مشفقین کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ان مجالس کے بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انہیں صحت عطا فرمائے انہیں زندگی عطا فرمائے رزق کثیر عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ ادا صبح قیامت تک جاری و ساری ہے اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہے پروردگار ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں ہم سب تیرے دروازے کے مانگتے ہیں مالک تم ہر ایک کے دل کی ایک ایک دھڑکن سے واقف ہے میرے معبود تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تکلیف ہی نہیں ہوتی میرے اللہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ سنیے یعنی معرفت توحید کے سمندر کو میرے مولا نے ایک قطرے میں پرو دیا ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ تو وہ ہے میرے اللہ مولا میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پہ چلتی ہوئی چینٹی کے پیروں کی آواز بھی سن لیتا تیرے سامنے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں ایک ایک کا نام لے کر کہوں کہ جناب ماجد جناب کے ساتھ یہ دعا ہے جناب صاحب کی یہ دعا ہے امام شاہ کی یہ دعا ہے اور وہ نگاہ ایسا تو میں کب کروں کہ جب کوئی دلوں کے پھیلوں سے نہ واقف اتنا تو وہ دل کی کیفیت سے واقف نہیں ہوتے جن کا اپنا دل ہے اتنا تو ہم اپنے دلوں کی کیفیت سے واقف نہیں ہے جانے کتنی کیفیتیں ہم پر ظاہر ہیں کتنی کیفیتیں خود ہمارے دلوں کی ہم پر ظاہر نہیں ہے میرے محبوب دل کی وہ حرکت ہی نہیں ہے جس سے تو بے خبر ہو جائے میرے اللہ ضرورت تو ہے نہیں کہ تجھ سے بتایا جائے لیکن تیرا حکم ہے قرآن میں کہ مجھ سے دعا تیری بارگاہ میں پروردگار خوف آتا ہے کہ کہیں تجھ سے یہ کہے کہ تو یہ دے دے اور تو یہ دے دے اس بات پر منتہج نہ ہو جائے کہ جیسے ہم تجھے بتا رہے ہیں یہ دے دے نہیں میرے اللہ تیری عظمت کا سمے ایسا نہیں
مجھ سے مانگو. یہ جو مانگ رہے ہیں نا یہ بھی تیرا حکم مان کر مانگ رہے ہیں. یہ جو نماز پڑھی ہے نا وہ تیرے حکم کے تحت, جو روزہ رکھا ہے نا تیرے حکم کے تحت. تو اسی طرح یہ جو دعا مانگ رہے ہیں نا تو اپنی مرضی سے نہیں ہے, ہم جانتے ہیں تو ہی دینے والا ہے. لیکن تم نے حکم دے دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگ, یہ حکم کے تحت مانگ رہے ہیں. اور میرے اللہ تو سب بھکاری بیٹھے ہیں, میرے گھر کے بندے بیٹھے ہیں. پروردگار عالم میرے معبود, تو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہو تو زمین پر حسین کا دروازہ میرا دروازہ. میرا دروازہ ہے زمین پر, یہ میرا دروازہ. تیرے حکم سے تیرے در پہ آ کر بیٹھے, نہ ہم نے موسموں کی پرواہ کی ہے, گرمی ہے سردی ہے, کوئی پرواہ نہیں. تیرے حکم پر آ کر اب میرے اللہ دو ہی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یک جنبش قلم ہم سارے فقیروں کی تمام دعائیں مستجاب کر دے, یا تو ہماری دعائیں مستجاب کر دے یا پھر کوئی دوسرا دروازہ میں دعا کرتا ہوں سب کی دعائیں مستجاب ہوں. اور عمران ٹیپو کراچی میں بیمار ہے, مجھے فون آیا ہے ہاسپٹل میں, اللہ اسے شفا عطا کرے گا. اور جن لوگوں نے مجھے کہا ہے ممبروں پر یہ دعائیں مانگی, اللہ محسن علی شاہ حمدانی کی اہلیہ بیمار ہے, دعا کرتا ہوں اللہ انہیں شفا کرے. اور میں اپنے جتنے بھی مجھے کہا تھا سب کی دعائیں مستجاب کرے. مرحومین کے درجات پروردگار کی جنتوں میں بلند ہو. جناب واجد اندلابی صاحب کی والدہ ولی اللہ کی بلند ہے درجات, اللہ اور بلندی ہے. آپ کے جو بزرگ اب نہیں ہیں اللہ ان کے درجات پروردگار ہماری بارش کے ضرور میں تاجی محمد ہوئے اور سید سبتے صاحب اللہ سبتے شاہ صاحب اللہ کی زندگی سے ہمیں اللہ اپنے وارث کی معرفت عطا فرما, عشق عطا فرما, ان کے امان و انصار میں شامل فرما, ان کا دفاع کرتے ہوئے ان کے نالین مبارک پر جام شہادت نوش کرنے کی سلوات پڑھے. ایسی یہ دعائیں مستجاب. خواہش یہ ہے کہ آج کی مجلس میں قرآن مجید سے, تفسیر قرآن سے, زبان معصوم سے ولایت علی کا ایک راز پیش قرآن سے, تفسیر قرآن سے اور زبان معصوم. حضور علی پروردگار عالم نے دنیا میں ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری, اور پھر ان نبیوں میں ایک نبی آ گئے بالکل نوجوان تھے, بالکل نوجوان. جب مبعوث پر رسالت ہو گئے, رسالت تبلیغ شروع کر دی, جو نبیوں کا کام امر بالمعروف نہی عن نبی نے اپنی تبلیغ شروع کر دی جو نبیوں کا کام تھا. امت نے پتھر مارنے شروع کیے جو امت کا کام تھا. سمجھاتے رہے, بتاتے رہے, بت پرستی نہ کرو, شراب نوشی نہ کرو, جوا نہ کھیلو, اللہ کی طرف وحدہ لا شریک وہی ہے پرستی سکھا. یہ پتھروں کے لکڑیوں کے نہیں, یہ ستارے پوجا کے لائق نہیں, یہ دریا سمندر
बादल गिराई नहीं नमन बहुत समझा है, बहुत समझा है। नहीं 3 साल हुए फिर उम्मत ये वैसे नहीं बात है कि हमारे खुदाओं के लिए ऐसी बातें करते हैं। हमारे बाप दादा जिनको पूछते थे हम इसको कत्ल करते थे, उम्र तो कत्ल का प्लान करते अब जो नबी है उन्होंने पार का है फरियाद ऐ मेरे अल्लाह इतना समझाया मगर ये बदबख्त जो है वो सीधी राह पे नहीं आया। नौबत यहाँ तक आ गई तब मेरे कत्ल की था तो मेरे इज्जतों वाले रब तू इन पर अपना अजाब नाज़िल कर। याद रखिएगा जब वो किसी को नबूवत देकर भेजता है एक हाथ में नबूवत देता है दूसरे हाथ में अजाब का इख्तियार। जब तक हौसला है तब्दील करना, जब सबसे पहले गुजर जाए इख्तियार देना अजाब दुआ मांगना मैं उम्मत को बर्बाद कर दूं तुम्हें बचा दूं। बड़े बड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी ये इख्तियार 950 साल तक सब्र किया अजाब की दुआ 950 साल के बाद है और ये हमारे वाले हैं। कौन सी मुसीबत है जो इन पे ना आन पड़ी मगर अजाब की। ये मेरा मौजू होगा तो वहाँ जुलूस में वहाँ ये हमारे वाले यहाँ से ये मौजू है वहाँ मैं अजाब। उन नबी ने अपनी उम्मत को कहा सुनो भाई बड़ा मैंने तुम्हें समझाया मगर तुम न माने। कह दिया मैंने अपने इज्जतों वाले रब से खुद के दिन तैयार हो जाओ अजाब आ रहा। जब का अजाब आ रहा है मोहम्मद वाले आगे से क्या लीजिए अलाव लेकर आएंगे हम भी अलाव और बदतमीजी की और बहुत सी बातें की जो मैं बयान नहीं कर सकता। आपको समझते हैं उम्र के मिजाज से भी वाकिफ है उनकी जबानों से सरकशी की और बदतमीजी की बातें देखना है अलाव और ये क्या कर हुजूर अली बुध का दिन अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था ये लोग सोए हुए थे भयानक आवाजें कानों में पड़ी। घबरा के जो उठे तो देखते हैं कि बादल है जिसमें से शोले निकल रहे पत्थर बरस ये क्या हो गया। और सुनिए तुम्हें याद है कि हमने यूनुस को झुठलाया था। जो लेकर हुए बोले इन नबी का नाम क्या है जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम। वाकई सच्चे नबी थे वो देखो जो उन्होंने कहा अज़ाब इतना भयानक लगा शोले लग रहे हैं पत्थर जहाँ पत्थर गिरता है पहाड़ों में आने लग रहे जानवर मरना शुरू हो गए। ये अज़ाब तो अभी नाज़िल नहीं हुआ है तो यार तो फिर नाज़िल हो गया ना हम रहेंगे ना हमारी कुश्तियाँ रहेंगी ना औरतें रहेंगी ना बच्चे रहेंगे ना मवेशियाँ हाय बड़ा सुन गया। वो सच्चे नबी थे अपने सच्चे नबी को झुठला दिया। उम्मत क्या कहने लगी सच्चे नबी थे अपने सच्चे नबी। आप क्या करें क्या कर सकते अज़ाब को सर पर कोई बचा नहीं सकता। वैसे तो मारा और चल कर पाकिस्तान उनके कुछ लोग समझना थोड़ा सा घबराओ जुमला सुनिएगा
की एक तरीका है। उन्होंने कहा भाई कौन सा तरीका? ये आ गया अजाब। और यूनुस नाराज होकर चले गए। अगर बस्ती में होते पैर पकड़ लेते उनके, माफ कर देते, तो बस्ती से चले गए। अब कौन बचा? समझदार लोग कहते हैं कि घबराओ नहीं, यूनुस नाराज होकर गए हैं ना, यूनुस का चचा जात भाई अभी बस्ती में ही है। समझदारी की बातें यूं होती है, समझदार। उनका नाम है तनोजा। कहाँ है? पहाड़ों वादियों में पेड़ बकरियां चरा, दौड़ो उनके पास, दौड़े और जाके उनके पैरों से लिपट गए। नबी के भाई, नबी के भाई तुमने मान लिया? कहाँ मान लिया? कहते नहीं वो अलावा, अब कहते ना माने कि वो सच्चे नबी, अब अलाप से बचा। वो तो बस अलाप देखो बस आया कि आया और हम बर्बाद हुए। और समझाया था तो है, सच्चे दिल से आपके भाई की नबूवत और उसके अल्लाह की बंदागियत पर ईमान लाना। कोई तरीका करे, हमें यकीन है आप हमें बचा लें। तो एक बात तो इन वाकयात से ये समझ में आ गई कि जो सच्चा ईमान है ना, उसकी अलामत ये है कि नबी के भाई के पैरों से लिपट कर इख्तियार किया जाता है। चलो फिर ऐसा करो, तुम अगर सच्चे मोमिन हो गए और उन पर ईमान लाए, तो नाराज कर दिए तुमने, वो तो चले गए। तो तुम ऐसा करो कि जल्दी जल्दी जितनी औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, दूध पीते, वो बच्चों को माओ से जुदा करो। जो ऊँटनियाँ हैं जिनके बच्चे दूध पीते हैं, उन ऊँटनियों के बच्चों को माओ से जुदा करो। भेड़ बकरियों के बच्चे जुदा करो, गाय भैंसों के बच्चे जुदा करो। और माओ को, चाहे इंसानों की औरतें हो या हैवान, उनको पहाड़ की एक वादी में जमा करो, दूध पीते बच्चे दूसरी वादी में, कि माए बच्चों को ना देख सके, बच्चे माओ को ना देख सके। उन्होंने कहा हो जा, अजाब सर पर है, हमें अजाब को रोकना है। ये आप कैसा तरीका बता रहे हैं कि दूध पीते बच्चे माओ से जुदा करें, हैवानों के भी? जब औरतों के बच्चे, जब भेड़ बकरियों के बच्चे, जब ऊँटनियों के बच्चे माओ को नहीं पाएंगे और भूख लगेगी तो मचल मचल के रोएंगे। जब वहाँ ऊँटनियाँ, भेड़ बकरियाँ, औरतें बच्चों को नहीं पाएंगी तो वो गिरिया करेंगी तड़प तड़प। एक वादी से माओ का गिरिया बुलंद होगा, एक वादी से बच्चों का गिरिया बुलंद होगा। जब ये रोने की आवाज आसमान की तरफ जाएगी, उसकी रहमत को जोश आ जाएगा। हुजूर अली, कहाँ है वो ज़हनियत जो कहती है रोना नपुंसक है? हम तो ये पढ़ रहे हैं कि रोना नपुंसक नहीं है, बल्कि अल्लाह के आए हुए अजाब को टाल देने का जरिया है रोना। चाहे इंसान का हो, चाहे हैवान। घबरा तो नहीं रहे मेरे मौला? ऐसा ही इधर से जो रोने की आवाजें उठी, तो अजाब आ रहा था, वो ठहर, और वो जो आग के शोले निकल रहे थे, उसमें से फूल बरस रहे हैं, जो लपटें पड़ रही थी, उसमें से जन्नत की हवाएं आ रही। अजाब का देखते देखते रहे बाहर, वो खुशी के सजदे करने लगी। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से जा रहे थे और मुड़ कर दे, अब आया अलान, पता चलेगा मेरी माँ तुमने कैसे मुझे छुटकाया। आ गया ना मेरे रब का वादा सच्चा हो गया, अभी चलकर पाकिस्तान जब आया जनाब यूनुस ने देखा अजाब तो रुक गए, शोले बंद हो गए, फूल बरसने लगे, ठंडी हवा। ये क्या? अब क्या करूं? अब जाऊं बस्ती में, पहले चैन से नहीं रहने दे रहे, अब ताने दे के मार देंगे। मुझे तो पता नहीं कि मुंतलिब हो गए, तो मान गए।
मुसाफिर बैठे, ये भी जाके कश्ती में बैठ गए। लीजिए मल्लाह ने लंगर उठाया और पानी की सतह पर कश्ती ने सफर शुरू किया। चलते 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 जो कश्ती जो है जैसे ही दरिया के मस्त में पहुंची, भंवर की कश्ती भंवर में गई। कश्ती भंवर में गई, कश्ती को पहला जो चक्कर आया और तख्ते टूटने गया, सवारियों ने शोर बचा, मर गए मर गए मर गए। मल्लाह खड़ा, मल्लाह खड़े हो गए, रुको रुको, मौत के मुंह में तो चले गए हम, लेकिन अब मल्लाह ने हम जानते जुमला आपकी समातों के लिए मौसे जी ने कश्मीर हदिया करना, हम जानते हैं ठहर जाइए। मुझे लगता है कि कोई गुलाम अपने आका से भाग आया, कोई गुलाम अपने आका से भाग आया है। कभी कभी अगर जिंदगी की कश्ती डोलने लग जाए ना तो ठहरना, सोचना कहीं हम वो गुलाम तो नहीं है जो आकाश से भाग रहा है, कोई गुलाम अपने आप। तो सुनो भाई, ऐलान किया बोला गुलाम को चाहिए अपने नहीं अपने आप को दरिया में फेंके ताकि तुमसे तो बच जाए। मैं होगा कम से कम मैं आपका चुप करके बैठा है, नहीं वो नबी है, हम जैसा नहीं है। खड़े हो गए, कहा वो गुलाम मैं ही हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो बुलाने का ठहरिए ठहरिए, इतना नूरानी चेहरा है, आप ठहरिए, पता चला नबियों के चेहरे और क्या समझदार है मल्लाह, बहुत समझदार। इसलिए मल्लाह को कहते ना खुदा। नहीं नहीं, मुझे लगता है शायद आप हम सबको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने लगे, तो अगर आपने ऐसा कर दिया हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ये गुनाह भी मर जाएगा ना। ऐसा नहीं करेंगे हम, कुर्रा डालेंगे, पता नहीं कोई दूसरा बंदा है जो छुपा बैठा, कुर्रा डालेंगे, जिसके नाम कुर्रा निकलेगा हम उसे खुद दरिया में देंगे। 3 बार कुर्रा डाला, तीनों बार चला फिर यूनुस के नाम निकला, पकड़ा मल्लाहों ने पकड़, और कश्ती के नीचे नीचे मछली चल रही, और दरिया में देखा मछली ने मुंह को निकल, सुभान अल्लाह। अब जरा बुला कि आवाज कुदरत आई, मछली याद रखना यूनुस तेरा मेहमान है, तेरी ग़िज़ा नहीं। तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, मैदा तो मैदा है, जो मैदे में चला जाए वो मेल्ट हो जाता है, वो हजम हो जाता है। उसकी कुदरत देखे, जानवर जिंदा है, जानवर के मैदे पर भी अल्लाह का कंट्रोल। मौलाए कायनात से सवाल हुआ, मौला बताएं, एक यहूदी आलिम ने पूछा, या भी बताएं वो कौन सी कब्र है जो अपने साथ को सैर करा रही। फरमाया वो मछली जिसके पेट में यूनुस, यदि मौला ने मछली के पेट को यूनुस के लिए कब्र करार दिया, सैर करा दिया, कभी इस दरिया में, कभी उस समंदर में, कभी उस लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने बताया क्या किया, यूनुस ने ये किया कि मछली के पेट में ही मुसल्ला बिछा दिया। ये लफ्ज दे रहे हैं कि यहाँ पे मुसल्ला बिछाया हुआ लफ्ज वहाँ नहीं है, हमेशा वहाँ नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से कह दिया समझने और समझाने के लिए कि मुसल्ला बिछा दिया, ठीक है। मुसल्ला ऐसे ही कि जहाँ कभी मुसल्ला नहीं होता और आपने नमाज पढ़नी होती है तो आप क्या करते हैं, वो यूं खड़े हो जाते जैसे मुसल्ला बिछा दिया, जैसे मुसल्ला बिछा दिया और इबादत शुरू हो, ला इलाहा इल्ला अंता
सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये ऐब है तेरी शान, ये ऐब है तेरी शान। बेशक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, वो तो मैं ही हूँ जिसने जुल्म किया आपने, मैं ही हूँ जो ज़ालिमीन है। आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब जरा याद तो करो मछली वाले को, याद तो करो मछली वाले को, जब उसने हमें पुकारा फिर गुलमान अंधेरों में से। बलागत कुरान देखिए, कहना चाहिए था अंधेरे में से, अंधेरों में। बलागत कुरान पे कुर्बान जाए, अंधेरे मतलब मछली के पेट का अंधेरा, मछली है समंदरों की गहराई, एटलांटिक ओशन, एटलांटिक बहुत ज़्यादा जो है, आप जिसको पढ़ रहे हो सुन रहे हैं, कि एटलांटिक जो है वो इसलिए वहाँ पिछले दिनों का अप्रोच अगर क्रॉस हो गई कि उसका अंधेरा ही इतना खतरनाक है, अंधेरा इतना खतरनाक है, उन अंधेरों में है वो मछली। तो मेरे हबीब जरा याद तो करो मछली वाले को जिसने मुझे अंधेरों में से। कुरान की आयत नहीं है, तफसीर नहीं है, रिवायती आयत है। उसने मुझे अंधेरों से क्या बताना चाह रहा है? हमें बताना चाह रहा है कि मुश्किल में फंस जाओ तो घबराना नहीं कि उसे कैसे पुकारे। अरे मैं तो उसकी भी सुन रहा हूँ जो अंधेरों में से पुकार रहा था, अंधेरों में, अंधेरों में। और क्या पुकारा? अल्लाह खुद बता रहा है, जनाब यूनुस के लफ्ज़ कुरान की आयत है, ला इलाहा इल्ला सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ये है। और कज़ालिका नुंजील मोमिनीन, मैंने क्या किया जब उसने मुझे पुकारा तो बदनजाए, मैंने उसे नजात अता कर, नजात अता कर गमों से, मुश्किलात से। अगली आयत तो कमाल करती है, दिल पे चैन आता है। अभी कहते ईमान वालों से कि मैं इसी तरह ईमान वालों को गमों से नजात दिया करता। अब तो बिल्कुल वाज़ेह अमल आ गया आपके सामने कि जब भी कभी मुश्किलों और जिंदगी में अंधेरे हो, बेरोजगारी के, बीमारी के, कर्ज के, बच्चियों के बच्चों के रिश्ते ना होने के, जब भी अंधेरे करना न करें तो फिर कुरान की आयत है, ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। लेकिन याद रखिएगा इस अमल को एक खास राज है। आ जाए आगे, आ जाए, बिस्मिल्लाह, आ जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस अमल के खास राज है, और राज ये है तो ऐसा कीजिए सर, थोड़ा आगे आ जाए, पीछे वाले आ रहे हैं ना, तो आपको डिस्कस इस अमल को जल्दी कर लेना, 313 मरतबा पढ़िए इस अमल को, सुभान अल्लाह। और अगर किसी ने कमर हिम्मत बांध दी और इसको 3125 मरतबा रोजाना पढ़कर 40 दिन कामिल कर लिए तो अपनी आंखों से वो देखेगा जो किसी ने नहीं देखा। तो 2.5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे, इतना टाइम लगेगा तो क्या हो गया? परवरदिगार की बारगाह में अगर कोई 2 घंटे बैठ जाए, वही तो जगह है जहाँ का वक्त कीमती है। एक फर्श हुसैन पर बैठना, एक अल्लाह के इबादत में मुसल्ले पर, जब आप अल्लाह की इबादत में मुसल्ले पर बैठ जाए ना 5 मिनट 15 घंटे, हुसैन की अदादारी में बैठ जाए 2 मिनट 20 घंटे, जितना भी बैठ जाए ना, समझिए जितना बैठे ये सोना है।
ये हीरे, ये जवाहरात, जितना आप बैठे, अगर 2 मिनट बैठे, हम जरा यही सोना है, मुसल्ले पर 1 मिनट बैठे तो यही सोना, बाकी जितना वक्त है वो मिट्टी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और अब इरशाद हो रहा है कि मेरे हबीब, अगर यूनुस मेरी ये तस्बीह न पढ़ते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं यूनुस को कयामत तक मछली के पेट में जिंदा मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, अगर ये लफ्ज़ नाकाबिल नशीस हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उर्दू ज़बान में दामन अल्फाज ज़्यादा नहीं है, अरबी ज़बान में है, तो माफ़ कि अगर कोई लफ्ज़ ऐसा हो जो आप सुनते नशीस पर बात हो तो माफ़ी। यानी उसका गैर देखने, उसका गुस्सा देखने, गुस्सा देखने, अगर ये न पड़ता तो मैं क़यामत तक मछली के पेट में रखता। ये आयत है, रिवायत है, इसका मतलब अगर यूनुस मछली के पेट में जिंदा रहते कयामत तक, तो मछली भी रहती ना जिंदा कयामत। मेरे वाजिबुल एहतराम सामने जो कुदरत वाला, इज्जत वाला अल्लाह, अरे मछली को कयामत तक जिंदा रख सकता है, वो वंशियों के 12वें इमाम को कयामत तक मछली ने किनारे पर आकर उगल मछली के पेट से बाहर तो आए, मगर ये जो बदन में हाथ बाल ये खाते, मछली का पेट मछली है, ये कैफियत है। तो ऐसे होगा कि पैर जमीन पे रख नहीं सकते, गिर गया, खूब तेज। अल्लाह ने क्या किया कि किनारे पर एक कद्दू की बेल निकल आई। कद्दू की बेल देखी होगी, कद्दू की बेल अगर आपने देखी है तो देखे, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, खूबसूरत कोंपलें होती है, वो एक कोंपल उनके मुंह पे चले, उसका रस चूसने लगे और पत्ते जो थे उन्होंने बदन पर छांव बना, दरिया के किनारे झोपड़ी बन गई उसकी, और वो गिज़ादी ले रहे हैं और छांव में ले रहे हैं। 7 दिन लेते रहे, जख्म बदन ठीक हो गया। आपने सुना होगा जब कोई खुदा न खास्ता ठीक हो जाए बुखार तो उसे कहते हैं इसे कद्दू खिलाओ, ये जनाब यूनुस से चला। एक कीड़ा होता है दीमक, सुई की नोक जैसा कीड़ा होता है, दीमक कहते हैं, लकड़ी खा जाता है। आप क्या कुछ और कहते हो? दीमक, सुई दीमक, छोटा सा दीमक, वो दीमक कीड़ा है, वो कद्दू की जो बेल थी उसके अंदर बैठे, उसको खाने लगे, वो बेल उसको बेल बैठे, तो वो जो कोंपल चूस रहे थे वो कोंपल को छोड़े, खूब लगे, इधर देखो काफी खुश, अरे ये वो दीमक खा रहा है बेल को, खा गया। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, ये देखा कीड़ा दीमक कितना जालिम कीड़ा, मेरे अल्लाह, ये हरी भरी जो बेल थी कद्दू की, परवरदिगार ने देखो कितना नाम, ये हरी भरी बेल थी कद्दू की, मेरे अल्लाह ये कीड़ा खा गया। आवाज़ें गुजरता है यूं, ये कद्दू की बेल तूने लगाई थी, इसका बीज तूने डाला था, पानी तूने दिया था,
ریاست تم نے کی نہیں میرے جو پیڑ کا بیج نہیں ڈالا تم نے پانی نہیں دیا ریاست نہیں کی محنت نہیں کی وہ پیڑ چل گئے اتنا دکھ ہو رہا ہے اور وہ جن کے لیے بدوا کر کے آ گیا تھا یونس میرے بندے اس لیے پیدا نہیں کیے میں کہ میں پیدا کروں تو بدوائیں انہیں برباد کر جہاں وہ سارے مومن ہو گئے تیرا انتظار کر رہے ہیں تیری نبوت پر ایمان ہے اور تم سوچ تو رہا ہوگا کہ میں نے کہا تھا میں عذاب لا کھڑا کروں گا پھر عذاب پہ نازل کیوں نہیں ہوں میں اللہ ہوں توبہ کا موقع ضرور دیتا ہوں میں نے مجھے یہ کہا تھا کہ عذاب نازل کروں گا میں نے کہا تھا بدھ کے روز عذاب لا کر کھڑا کر دوں گا تو میں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں عذاب دیکھا اتنے بے ایمان تھے نامراد تھے مگر اتنے سمجھدار تھے کہ عذاب کو دیکھ کے ڈر گئے کہ نہیں عذاب آ گیا نبی سچا ہے ایمان لیا میں نے معاف کر دی سب تیرا انتظار کر رہے ہیں توجہ رکھیے گا میرے پاس سب تیرا انتظار کر رہے ہیں کیا ان کے پاس چلا جائے پھر چلے آئے اپنی قوم میں ساری زندگی اپنی قوم میں خوبصورتی کے ساتھ رہے اب سوال یہ ہے گناہ کون سا تھا لا الہ الا انت لہجہ اتنا سخت ہے کہ میں قیامت تک مسیح کے پیٹ میں رکھتا ہوں یہ کون سا گناہ کرا ہے وہ بندہ مار کر آ گئے تھے کیا کر کے آ گئے بس یہی راز سن لیجیے اب یہ تمام وجہ کیا تھی کون بتائے گا کہ یہ راز کیا امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال ایک لڑکا تھا
पैसे मांगना, ये करना, वो करना। एक दिन पैसे मक्के में ठहरे रहते, तो उन्हें पैसे मांगे, जुआ वगैरह में उड़ा देता। बाप ने कहा नहीं है, उसने तो जोर के बाप ने पैसे के हट जा, पैसे नहीं। उसने बाप का हाथ पकड़ लिया, बाप बूढ़ा आदमी था, वो जवान था, तो उसका हाथ जो मोड़ा तो बाप का हाथ टूट गया, बाप का हाथ टूट गया। उसके बाप ने बाप कड़पा और सामने खाना काबा ना हर के पास बैठे, तो बाप ने काबे की तरफ देखा, मेरे अल्लाह इतने सा था जब मैंने गोद में पाला था, इसलिए पाला कि इसको ताकत आई, फिजा खिलाई, दूध पिलाया, उसी ताकत से इसने मुझे मेरे बाप को बस इतना कहना था। उसी वक्त वो लड़का जमीन पर गिरा, अज़ाब आ गया और तड़पने लगा, बस खत्म हो गया, पैर की शल, हाथ की शल, सब खत्म, दुनिया के इलाज में। अल्लाह, जब वो बेटा तड़पा तो बाप बेटे को तरफ का देख नहीं सका, बाप गिरा और बाप मर गया। बाप तो भाग नहीं, आप वो जनाजा नहीं, किसके पास जाए, वो कहे बाप से माफी मांग, वो कहे बाप तो मर ही गया, माफी किससे मांगे। जब किसी दरवाजे पर शिफा न मिली तो फिर आ गया उस दरवाजे पर जहां फरिश्तों को भी शिफा मिलता। नहीं तो खाली साहब से, मौलाना साहब से हेल्प लीजिए, खुद पढ़िए रोजाना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, हर शब जुमा जरूर दुआ करना और आपको शिफा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। चौथे इमाम ने कहा मौला बताएं तो सही कि यूनुस का वाक़ा तो सीधा साधा है, फिर ये मछली के पेट में जाना, खाल का उतर जाना, अल्लाह का ये चलान क़यामत
इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही यूनुस कश्ती में बैठे और कश्ती चली, मछली को अल्लाह ने हुक्म दे दिया और मछली नीचे नीचे साथ साथ। मौलाना अच्छा मछली साथ साथ चली। मौलाना देख के कहा सुनने में यकीन नहीं आ रहा तो आंखों से दिखा दो। इमाम ज़रूरत पे नहीं आ रहा, हमने बताते हैं हद तो नहीं गए। आंखों से कहा चलो फिर चलो खड़े हो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, कब आंखें करो? कहता मैंने आंखें खोली तो अपने आप को हर शहर में नहीं पाए, मैंने दरिया के साहिल पर पाया। मौत सन दरिया, दरिया कहते इतना दरिया मौत सन था कि मुझे खौफ आ गया, वो मैं इमाम की तरफ आ गया, फिर मैं दरिया में बैठ जाऊँ। फिर साहब का चौथे इमाम ने कहा ऐ यूनुस की मछली, मैं अली का बेटा आवाज दे रहा हूँ, बाहर आना। जैसे ही इमाम ने एक मरतबा समंदर के अंदर तलाशों पैदा, जब मैंने देखा मेरी आंखों में पानी के अंदर से पहाड़ नुमा चिमनी चढ़ता 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 बनाने वाला बड़ी जहाज के बराबर मछली करीब उसने छुप कर सलाम दिया। इमाम ने जवाब में सलाम दिया, मैं उसे देख कर काम रहा। वो फसीह अरबी बोल रही थी मछली, और मुझे मछली इसे वो वाक़या सुना जो यूनुस पर गुजरी। कहने लगी फरमाते रसूल, अल्लाह ने मुझे इसलिए जिंदा रखा है ताकि जो आपसे गवाही मांगे मैं आपके हुक्म पर हाजिर होकर गवाही दूं। पता वाक़या ये कि जब यूनुस कश्ती में बैठे, अल्लाह ने मुझे हुक्म दे दिया साथ साथ चल। मैं कश्ती के साथ चल रही थी कि यकायक अल्लाह ने मेरे आगे से पर्दे हटा दिए, मेरी आंखों के पर्दे भी हट गए, समाज के पर्दे भी हट गए। जो कश्ती में हो रहा था मैं देख भी सकती थी, मैं सुन भी सकती थी कि अल्लाह ने हर नबी से मीसाक लिया है और हर जगह मीसाक लिया। अल्लाह ने यूनुस से मीसाक तब लिया जब कश्ती में बैठ गए थे। आवाज़ कुदरत आई, यूनुस मेरी वहदानियत का इकरार करते हो? कहा बेशक मैं तेरी वहदानियत का इकरार करता हूँ, मेरे आखिरी नबी की नबूवत को तस्लीम करता हूँ, बेशक हमारा बादशाह ताजदार अंबिया। यूनुस मेरे अली की विलायत का इकरार करते हो? यूनुस ने कहा बेशक मैं अली की विलायत का इकरार करता हूँ। मछली चुप हो गई, चुप हो गई। मैं सकती हूँ अगर यूनुस ने सारे इकरार कर लिए तो ईद का भी, नबूवत का, विलायत मौला करिए, ये पकड़ क्यों? मछली राज बताओ क्या है? कहने की फरमाते रसूल, अल्लाह ने कहा यूनुस मेरी वहदानियत का इकरार करते हो? यूनुस ने कहा तू वादा शरीक, मेरे आखिरी नबी की नबूवत, बेशक वो ताजदार है, मेरे अली की विलायत का इकरार। तो मछली ने कहा यूनुस ने जिस तरतीब से अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, रसूल अल्लाह की नबूवत का, अली की विलायत का इकरार तो किया, मगर विलायत अली का इकरार करने से पहले चश्मे ज़दन के बराबर यूनुस चुप हुए। फिर विलायत अली कहकर आवाज़ कुदरत आई, विलायत अली के मामले में तू चश्मे ज़दन के बराबर सोच में पड़ गया, मछली निकल जा इसको। से कह बात सलामतियाँ हो जो यहाँ है, जो वहाँ देख रहे हैं, सबको सलामत रहे, आप सबको समझे। इकरार किया मगर चश्मे से ऐसे पलक झपक, इतनी देर के लिए खामोश, उसे कबूल नहीं है, उसे बर्दाश्त
अब सुनिए, अब पता चला ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जिन्होंने देर की विलायत अली कबूल कर ले, थोड़ी देर के लिए मैं भी उन्हीं में से हो गया था। बंदा तेरा हूँ, मुझे माफ कर दे। तो जिसकी बिना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हवाला इसलिए दे दिया कि कोई परेशान ना हो कि भाई कहाँ से मांगा। किताब तर्जुमे के साथ बाजार में मौजूद है, आप देख सकते हैं। बस इज्जत कुछ लिखते आए, बस एक जुमला ताकि जो है वो मजलिस कामिल हो जाए। अदादारों जिनकी विलायत के बगैर अंबिया पकड़ में आ जाते हैं, हाय वो वक्त आ गया। खुशी अली की बेटियां हैं जिंदान शाह, जिंदान शाह, जिंदान शाह। और वो जिंदान शाह और जिंदान शाम से आई एक आवाज, हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा। और हाय बाबा कहती हुई जिंदाने शाम में खामोश, फिर एक नन्ही सी कब्र सजाने, फिर अहले बैत रिहा हो, फिर हसरत भरी निगाहों से देखते और ये कहते चले गए। रोज पूछती थी वतन कब जाना है। फिर शाम का जिंदान अंधेरे और हुसैन के सीने पे सोने वाली के नन्ही सी। फिर वक्त गुजरता गया, फिर दिलों साथ, फिर सदियां गुजरी, फिर 1225 हिजरी आ गई। 1225 हिजरी में तुर्की की हुकूमत आ गई। हमारे मजहब के बहुत बड़े नाम हैं, दो सगे भाई, सैयद शरीफ रजी नैजुल बलागा, सैयद मुर्तज़ा और पाकीज़ा सैयद खानदान रसूल। ये वो लोग जो मखलूक़ात से भी बचे। शाम में क़याम था, अपनी बेटियों के साथ घर के पर्दा था। पाप देखा, रसूल अल्लाह खान गया, कहा मुर्तज़ा मेरा बेटा, जिंदान शाम में जो मेरी बेटी की कब्र है उससे तो बराबर में नहर गुजर रही है। वो नहर का पानी कब्र को नुकसान पहुंचाना है। तुम तो सैयद हो, तुम्हें हुक्म देता हूँ चले जाना, किसी और को अपना नाम दे देना, अपनी बेटियों को घर की ख़वातीन को ले जाना, पनाते लगा देना और जरा लाशे को बाहर निकाल लेना और कब्र की तामीर करके फिर तामीर कब्र लगा देना। अजीब बात, उठ कर बदल बस सोच रहे। दरवाजे पे दस्तक हुई, वालिय दमिश्क का काशी का वो जाग रहा था। ये ख्वाब मैंने देखा, ये ख्वाब तो मैंने नहीं देखा। आप बेशक जल्दी एक तमाम कीजिए। देखा तो आज भी वो नहर जो है वो रोज़ा अख्तर के पास है, दायरे जानते हैं जो पिछली तरफ से तमाम हो गया। बस तमाम हो गया। इस बात को मैं पढ़ रहा हूँ, किताब का नाम है उम्मत और अहले बैत और हैदराबाद दक्कन से शाया हुई है। 2-3 किताबों में है, लेकिन मैं हवाला इसलिए बता रहा हूँ कि जिन अल्फाज के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप इन्हीं अल्फाज के साथ देखें तो फिर उस किताब में भी लिखेगा जिसका मैं पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि मेरी बच्चियाँ साहब अजीब कैफियत और एक मासूमा की खबर जो 61 हिजरी में बनी है, वो खुदे नाशिक बाहर जो है वो जनाजे अख्तर और जो दरिया जाली है बहरा जनाजे लगाती गई। सैयद कहते हैं मैंने वजू किया और मैं जो है नरस दिल के साथ और लहद मुबारक के पास जाकर बैठ आंखों को मैंने बंद किया और
पूरी बच्चों ने चीखे मारो, मैंने कहा बाबा हाथ फैलाओ, मैंने हाथ फैलाए, उन्होंने मासूम का जनाजा उठाकर मेरे हाथों पे रखा। मुझे उस वक्त तक जनाजे को हाथ में रखना था जब तक कब्र की ताबीर ना हो जाए, ताबीर कब्र। तो मैं कांपने लगा, मैंने आंखों को नहीं खोला तो यकायक मेरी बेटियों ने अपने सर कनालों से टकराए, पत्थरों से टकराए, चीखने पलक हुई ऐसे कि अभी सब मर जाएंगे। अरे मैंने कहा क्या हो गया? कहा बाबा हुसैन की अजमत का वास्ता एक लम्हे के लिए आंखें खोलो बाबा। कहते मुर्तबा कहते काश में मर जाता, आंखें न खोलता। अरे जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा सकीना के बदन पर चला हुआ कुर्ता था।